أشهد أن محمد رسول الله. اگلا سوال میل رائے میسکرینس کا ہے. پانی 3 سٹیٹ میں ہوتا ہے. پانی 3 حالتوں میں ہوتا ہے. لکوڈ یعنی پانی، سالڈ یعنی آئس برف، گیس یعنی واٹر ویپر، وہ پانی ہی رہتا ہے. اسی طرح ایک آدمی باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے اور بزنس مین بھی ہے. یہ سب ایک ہی آدمی ہے. تو ٹرینیٹی میں گاڈ، سن اور ہولی اسپرٹ یہ سب ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھائی میسکرینس نے سوال پوچھا ہے کہ واٹر کین مین 3 اسٹیٹس، سالڈ، لکوڈ اینڈ گیس. پانی 3 اسٹیٹس میں ہو سکتا ہے، سالڈ، لکوڈ اینڈ گیس. برف، پانی اور ویپر. اسی طریقے سے ہمارے ٹرینیٹی کے اندر گاڈ کیوں نہیں فادر، سن اینڈ ہولی گوسٹ ہو سکتا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے. اور ایک سوال پوچھا انہوں نے کہ ایک آدمی باپ بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، بزنس مین بھی ہو سکتا ہے. تو جب ایک آدمی بھائی اور بزنس مین اور باپ ہو سکتا ہے تو خدا کیوں نہیں 3 ہو سکتا ہے، فادر، سن اینڈ ہولی گوسٹ؟ پہلے سوال کا جواب ہے کہ جب واٹر کین مین 3 اسٹیٹ، سالڈ، لکوڈ اینڈ گیس، پانی جب ہو سکتا ہے برف، پانی اور ویپر میں، تو خدا کیوں نہیں 3 جیسا ہو سکتا ہے؟ جب مثال ہم لیتے ہیں واٹر کین مین 3 اسٹیٹ، سالڈ، لکوڈ اینڈ گیس، دیٹ از آئس، واٹر اینڈ ویپر. سائنس اب یہ کہتی ہے کہ تینوں اسٹیٹ میں دا کمپونیٹس آر دا سیم. جس چیز سے تینوں اسٹیٹ بنا ہے سیم ہے. اٹ از H2O، 2 ایٹمز آف ہائیڈروجن، 1 ایٹم آف آکسیجن. سائنس یہ کہتی ہے چاہے پانی سالڈ، لکوڈ یا گیس ہو، اس کا کمپونیٹ سیم ہے، 2 ایٹم ہائیڈروجن کے، 1 ایٹم آکسیجن کا. لیکن جب ہم بائبل پڑھتے ہیں ہم اب یہ دیکھیں گے یہ فادر، سن اور ہولی گوسٹ کیا ہے. فادر کہتے خدا کو، سن ایک انسان ہے، ہولی گوسٹ ایک روح ہے. ہم جانتے ہیں کہ آدمی از میڈ اپ آف گوشت اور ہڈی، فلیش اینڈ بون. خدا اور اسپرٹ کے فلیش اور بون نہیں ہے، ان کا کمپوننٹس کے اندر فرق ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 39 to 43، عیسیٰ علیہ السلام جب آتے ہیں اپر روم میں اور اپوسٹل سے ملتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں بیہولڈ مائی ہینڈز اینڈ فیٹ، بیہولڈ مائی ہینڈز اینڈ فیٹ، ہینڈل می اینڈ سی فار اے اسپرٹ ہیز نو فلیش اینڈ بونس. آپ میرا ہاتھ اور پیر دیکھیے، پکڑ کے دیکھیے، کیونکہ ایک روح کے پاس گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی. آپ دیکھیے، مجھے ہاتھ لگا کے دیکھیے، ہڈی اور گوشت ہے، اور روح کے پاس ہڈی اور گوشت نہیں ہے. تو اس کے اپوسلز چوک جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں، ارے عیسیٰ علیہ السلام میں وہ ابھی تک کے مرے نہیں، وہ اسپرٹ نہیں بنے، وہ زندہ ہے. اور جب دیکھتے ہیں ہاتھ لگا کے، پھر عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ ڈو یو ہیو سم تھنگ ٹو ایٹ؟ دین دے گیو ہم برائلڈ فش اینڈ ہنی کوم. وہ انہیں دیتے ہیں مچھی اور شہد، اور وہ کھاتے ہیں. کیا ثابت کرنے کے لیے؟ کیا وہ خدا ہے؟ کیا وہ روح ہے؟ یہ ثابت کرنے کے لیے وہ انسان ہے، کیونکہ روح کو نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ خدا کو کھانے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے قرآن میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 75 میں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے. بہت سے پیغمبر آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں دونوں نے کھانا کھایا. کیوں لکھا ہے؟ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ خدا نہیں تھے. پانی، سالڈ، لکوڈ، گیس جب ہے کمپوننٹس ہے سیم، یہاں کمپوننٹ فرق ہے. انسان کی ہڈی اور گوشت ہے، روح کا نہیں ہے، خدا کا نہیں ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ جو مثال استعمال کے سائنس کے بنیاد کے اوپر یہ مثال ہی غلط ہے، بے بنیاد ہے. دوسری مثال جو بھائی نے دی کہ ایک آدمی پتا بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، بزنس مین بھی ہو سکتا ہے. اور میرے کئی دوست ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے، وہ پتا بھی ہے
उनकी बहन भी है तो भाई भी है वो, और बिजनेसमैन है. कई मिसाल है. तो अल्लाह ताला क्यों नहीं, खुदा क्यों नहीं फादर सन एंड होली गोस्ट हो सकता है? सवाल अच्छा है. लेकिन अगर एक आदमी पिता है, भाई है और बिजनेसमैन है, उस इंसान को उसकी बहन अगर सीक्रेट बोलती है तो वो आदमी जो उसके अंदर बाप है उसको भी सीक्रेट पता चलती है, जो भाई है उसको भी पता चलती है, बिजनेसमैन को भी, क्योंकि वो एक ही आदमी है. भले वो वालिद है, भाई है और बिजनेसमैन है, अगर बहन कोई सीक्रेट बोलती है तीनों को पता लग जाती है. बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 13 में वर्स नंबर 32 में, ऑफ दैट आर, वो दिन का, क़यामत के बारे में बात कर रहे, ऑफ दैट आर नोएथ नो मैन, नॉट इवन द एंजल्स इन द हेवन, नॉट इवन द सन ऑफ मैन, एक्सेप्ट द फादर इन हेवन. उस दिन का, आखिरत का कोई नहीं जानता है. ना फरिश्ते जानते, ना सन ऑफ मैन ईसा अलैहिस्सलाम जानते, लेकिन सिर्फ खुदा जानते. तो अब सोचिए, सीक्रेट खुदा को पता है, लेकिन होली गोस्ट मलाइका को नहीं पता, ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं पता. तो एक कैसे हो सकते? हो ही नहीं सकते. और अगर मान लो भाई मर जाएगा तो क्या वालिद बचेगा? एक इंसान जो भाई, वालिद और बिजनेसमैन है, भाई मरा तो वालिद भी मरा और बिजनेसमैन भी मरा. तो ईसा अलैहिस्सलाम जो इन्हों कहते सूली पे मर गए, हम नहीं कहते, वो कहते. तो ईसा अलैहिस्सलाम मरे तो सब लोग मर गए, फिर खुदा भी मर गए और रूह भी मर गए. मिसाल बिल्कुल गलत है. ये इस बुनियाद पे नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं थे, खुदा का दावा किया भी नहीं, वो अल्लाह के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे. मेरे पास 2 सवाल ऐसे हैं जिनका मफहूम एक ही है. मैं दोनों सवालात पढ़ लेता हूं ताकि डॉक्टर साहब को आसानी होगी जवाब देने में. जैस्मीन ब्रेगंजा कहती हैं कि ईसा मसीह ने ये कहा है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है. उसका मतलब ईसा मसीह और खुदा एक ही है. लॉरेंस मोंटेरो ये कहते हैं कि जीसस सेड इन जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिथ अनटू द फादर बट बाय मी. इज ही नॉट क्लेमिंग डिविनिटी? 2 सवालात जो आए, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिट अनटू माय फादर बट बाय मी, और दूसरे का कहते हैं ही दैट हैज सीन मी हैज सीन द फादर. ये 2 वर्सेस से, बाइबल से ये साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया, खुदा बनने का दावा किया. इसके सही मानी जानने के लिए कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी है. हवाला नहीं दिया इन्हें. पहले वर्ष का हवाला था गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर 6, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6, और दूसरा जो वर्स थी वो गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 9 है. कॉन्टेक्स्ट के लिए हमें जाना पड़ेगा वर्स नंबर 1 की तरफ और फिर पढ़ना पड़ेगा. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 1 में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आपको खुदा पे भरोसा है तो मुझ में भी भरोसा कीजिए. मेरे वालिद के पास बहुत से घर है. इफ यू हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन मी ऑल्सो. इन माई फादर्स हाउस आर मेनी मैंशंस. मेरे वालिद के घर में बहुत से कमरे, बहुत से घर है. आई गो देयर टू प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू. मैं वहां जा रहा हूं आपके लिए जगह बनाने के लिए. यू नो वेयर आई गो. आप जानते हैं मैं कहा जा रहा हूं. तो यहां फिलिप ईसा अलैहिस्सलाम से कहते वी डोंट नो वेयर यू आर गोइंग. फिलिप कहता है मैं नहीं जानता आप कहां जा रहे. तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6 में, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिट अनटू माय फादर बट थ्रू मी. ईसा अलैहिस्सलाम फिलिप को समझाते हैं मैं ही वो तरीका हूं, मैं ही हक हूं. आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिट अनटू माय फादर बट थ्रू मी. कोई भी आदमी मेरे वालिद तक नहीं पहुंच सकता बिना मेरे. इससे यह साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अगर आप जो मैंने तरीका कहा है, मैंने जो सिखाया है, उसके ऊपर अमल करेंगे तो आप मेरे वालिद तक पहुंचेंगे, तो आप खुदा तक पहुंचेंगे. इसका मतलब ये कि जब भी कोई रसूल इस दुनिया में आए, जो भी पैगाम ले आए, वो पैगाम इंसानों को खुदा तक पहुंचाता है. तो ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ही तरीका थे खुदा तक पहुंचने का. एट द टाइम ऑफ जीसस पीस बी अपॉन हिम, जीसस वाज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ.
no man came unto Almighty God but through Jesus Christ, peace be upon him. लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे मूसा अलैहिस्सलाम हक थे, मूसा अलैहिस्सलाम तरीका थे. कोई भी आदमी खुदा को मूसा अलैहिस्सलाम के तरीके के बिना नहीं पूछ सकता था. खुदा को पूछने का था तो मूसा अलैहिस्सलाम के तरीके से. At the time of Moses, peace be upon him, was the way, the truth and the life. No man came unto God but through Moses, peace be upon him. लेकिन आज की तारीख मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है. At the time of Muhammad, peace be upon him, until eternity, he is the way, the truth and the life. No man cometh unto Almighty God but through Prophet Muhammad, peace be upon him. आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है. जब भी वो आए और क़यामत तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे और आज के टाइम पे क़यामत तक के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका है, हक है. कोई भी आदमी खुदा तक पहुंचना चाहता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेंगे तो ही आप खुदा तक पहुंचेंगे. यहाँ ये नहीं साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया. आगे वर्स नंबर 7 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, नाउ यू नो द वे एंड यू नो गॉड. तो फिलिप कहते हैं, यू शो अस गॉड एंड विल बिलीव. आप खुदा को दिखाओ और मैं मान जाऊंगा. फिर ईसा अलैहिस्सलाम कहते, ही दैट हैज सीन मी हैज सीन द फादर. जिसने मुझे देखा खुदा को देखा. इससे यह साबित होता है जब जीसस क्राइस्ट कहते हैं, पीस बी अपॉन, ही दैट हैज सीन मी हैज सीन द फादर. सीइंग इज नोइंग गॉड. मींस इफ यू नो मी, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, यू हैव सीन गॉड. अगर आप मुझे जानते आप अल्लाह को देख चुके, खुदा को देख चुके. तो फिलिप कहते हैं, खुदा को दिखाओ किधर है. तो वो कहते हैं, he that has seen me has seen the father. जो मुझे देखा खुदा को देखा. मतलब जो मुझे समझा खुदा को समझा. seeing means knowing. उसके बाद फौरन आता है कि जो मैं काम करता हूं उससे साबित होता है कि मैं खुदा की तरफ से भेजा गया हूं. ये अल्फाज से साफ जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे और खुदा नहीं थे. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. पेपर स्लिप पर आए हुए सवालात के ये आखिरी सवाल है इस कड़ी का. आपने कहा है कि लिबास दूसरे मजहब की यकसानियत वाला न हो. आपने जो लिबास पहना है जो ईसाइयत की मुशाबहत वाला माना जाता है, ये क्या है? सवाल पूछने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा. भाई ने सवाल पूछा है कि जो मैं लिबास पहना हूं, कोट, टाई, शर्ट, पैंट, ये ईसाई मजहब की निशानी है, तो क्या जायज है? तकरीर में तो मैंने कहा कि वो लिबास जो दूसरे मजहब की निशानी है, हराम है. इस सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं. लोग को गलत फहमी है कि टाई और कोट ईसाई मजहब की निशानी है. जब हम बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि टाई ईसाई की निशानी है. ये गलत फहमी है लोगों में कि टाई क्रॉस की निशानी है. मैं जानता हूं कई मुसलमान सोचते हैं टाई द साइन ऑफ क्रॉस, ये टाई सलीब की निशानी है इसलिए हराम है. अगर हम तहकीक करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, उसमें लिखा हुआ है ये टाई सबसे पहली बार पहना गया था इन बोस्निया टू कीप द गारमेंट्स ऑन द बॉडी. ये बोस्निया का एक कल्चरल ड्रेस था, शुरू उधर, लाइक अ बोट टाई स्टार्टेड देयर. और बोस्निया में कौन लोग रहते? बोस्निया में मुसलमान रहते. वहां से शुरू हुआ और फिर फैला. ये टाई ईसाइयत की निशानी है ही नहीं. और एक रिसर्च किया गया था एक शख्स ने रियाद में इसके ऊपर ही, उसे कहीं भी ये नहीं मिला कि टाई ईसाई की निशानी है. ये तो हमारे मुसलमान जो वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ है, ये कहते ये टाई और कोट अगर आप कहते वेस्टर्न कल्चर, मुझे कोई एतराज नहीं. लेकिन ये कहना कि ईसाई की निशानी है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है. कहीं भी बाइबल में जिक्र नहीं. आप अब्रॉड जाएंगे तो हिंदू भी कोट टाई पहनता है, मुसलमान भी पहनता है, क्रिश्चियन भी पहनता है. ये हमें गलत फहमी है कुछ मुसलमानों को. और जब आप ये अरब लोग जब तोप पहनते, हाथ ऊपर करते हैं, तोप अगर पहना हुआ इंसान और हाथ ऊपर करता है, वो तो लिखता है क्रॉस जैसा. लेकिन थोड़ी तोप ईसाई मजहब में निशानी है ईसाइयत की, वो तोप पहन सकता है. लोग बोलते शर्ट मत पहनो, कुर्ता पहनो. कमीज अरबी लफ्ज है शर्ट के लिए. कमीज का जिक्र कुरान मजीद में कई जगह है. सूरह यूसुफ में सूरह नंबर 12 कुर्ते का जिक्र है ही नहीं.
कमीज का जिक्र है कुरान मजीद में, क्या है जानते यूसुफ अलैहिस्सलाम भागते हैं और पीछे से शर्ट फट जाता है, उसका जिक्र है, कहानी है यूसुफ अलैहिस्सलाम की। कमीज कैसा था हो सकता है ऐसा ना हो, बट कमीज का जिक्र है तो लोग को गलत फहमी है कि शर्ट कोट टाई। आप कोई भी कल्चर को फॉलो कर सकते हैं अगर वो शरीयत के खिलाफ नहीं है। वो कल्चर अगर शरीयत के खिलाफ है तो आप फॉलो नहीं कर सकते। अगर ये वेस्टर्न कल्चर है, कोट पहनना शरीयत के खिलाफ है तो हराम है, शरीयत के खिलाफ नहीं तो मुबाह है। लेकिन और एक कल्चर है वेस्टर्न कल्चर में शॉर्ट्स पहनना, ये कल्चर शरीयत के खिलाफ है क्योंकि मर्द लोग का सतर है नाफ से लेके घुटने तक। तो अगर मैं कहूं कि वेस्टर्न कल्चर फॉलो करके शॉर्ट्स पहनूंगा तो हराम हो जाएगा क्योंकि शरीयत के खिलाफ है। लेकिन शरीयत में कहीं नहीं लिखेला टाई मत पहनो कोट मत पहनो, तो टाई और कोट पहनना मुबाह है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुस्तहब है, मुस्तहब नहीं, फर्ज भी नहीं, मुस्तहब भी नहीं, मुबाह है। पहनने का है तो पहनो, मत पहनने का है मत पहनो। अच्छा लगता है पहनो, नहीं लगता है छोड़ दो। मैं थोड़ी जबरदस्ती कर रहा हूं। और मैं भी हमेशा नहीं कोट टाई पहनता हूं क्योंकि मैं सैटेलाइट पे आता हूं और मुख्तलिफ मुमालिक में मेरे प्रोग्राम जाते हैं और वेस्टर्न कंट्री में कोट टाई एक फॉर्मल ड्रेस है, तो और कई गैर मुस्लिम मुझे देखते हैं, इसीलिए मैं पहनता हूं। ये इस्लाम में मुबाह है, आपको पसंद है तो पहनो, नहीं पसंद तो मत पहनो, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा है कि हराम है। ये आपको गलत फहमी है। होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन।